Okay, so today we will try to see some of the important areas of sensation, attention, and perception chapter. Okay, what are the major themes, and from where UPSC is asking major questions from this particular chapter. Okay, so these are the major themes. If you analyze the PYQ, then you will get to know that majority of the questions from this particular chapter has been asked from these three criteria. Theories of perception. So this is very important. Okay, bottom up theory, top down processing, bottom up processing, basically. Okay, signal detection theory, absolute threshold, just noticeable difference. Okay, all these things you need to read. What are the application of this particular concept? The third one is three-dimensional perspective. Okay, 3D perspective. Okay, so these are some of the major dimension from where UPSC is asking question. Okay, so before we touch these particular topics, let me go through that how this particular school come into light. Okay, for example, if you see in this sensation, attention, perception chapter, then we are actually studying a separate branch which is called psychophysics. Okay, so in introduction chapter, if you remember that we see that psychology is also related to natural science. Psychology is also related to physics. Okay, so that is why it is psychophysics. है ना? So first of all, we need to understand that why there is Gestalt psychology. Okay, so Gestalt psychology. First of all, we know that structuralism, functionalism come into light. Then after this, Gestalt psychology comes, behaviorism come. Okay, so Gestalt psychology criticize the school of structuralism, also criticize the school of behaviorism. Okay, and then it come into light. ठीक है, तो पहले इसने स्ट्रक्चरलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया, then behaviorism को भी क्रिटिसाइज किया. Okay, so the school of structuralism was criticized by Gestalt psychology on two basic grounds. The first ground is elementalism. The second ground is constancy hypothesis. Okay, so if you remember that the school of structuralism held that experience could be broken down into element. Okay, study everything into its element. है ना? But on the other hand, Gestalt psychology had a strongly belief in the uniqueness of whole. Okay, no, so whole is important. है ना? Okay, parts, not parts, बल्कि whole is important. Okay, so perceptual whole should be explained. ठीक है? We should focus upon the whole. Whole is better than its parts. So this is Gestalt psychology. है ना? So Gestalt psychology claimed that in analyzing the experience of everyone, the structuralism school has destroyed the basic characteristics. And what is the basic characteristics? That is, you should study everything as a holistic perspective. ठीक है? So structuralism held that experience could be broken down its element. Gestalt psychology held that uniqueness of perceptual whole is important. तो पहली तो दिक्कत यही हो गई. The second is constancy hypothesis. Now, what is constancy hypothesis? So, if you remember the school of structuralism, they talk about, there is a doctrine in school of structuralism which is known as doctrine of psychophysical parallelism. Okay, so what is doctrine of psychophysical parallelism? It means that, or the constant hypothesis states that there is one-to-one relationship between physical event and psychological event. Okay, so there is one physical event or there is one psychological event. They are related to each other. One-to-one relation is there. Okay, but one-to-one relation means whatever, like let's say for example, what you are seeing, you are also inculcating that visual into your environment or into your understanding. है ना? But it is not always correct. According to Gestaltic psychologist, what we perceive is not the same as what present in the environment. Okay, it is incorrect also sometimes. Okay, for example, Muller-Ayer illusion, optical illusion, Ponzo illusion. Okay, so when we perceive them, it is not the same always. ठीक है, हमेशा सेम नहीं होता है ना. ठीक है, जैसे मुलर आयर इल्यूजन क्या बोलता है? This is one line, this is another line. ये एक लाइन है. Okay, now it perceived that this line is longer than this particular line, but it is not the correct. Okay, so this is Muller-Ayer illusion. So what we perceive is not the same as what remains physically present in the environment. Okay, so in this way, Gestalt psychology heavily criticized the school of structuralism on the basis of 2 points. The first one is elementalism. The second one is constancy hypothesis. Okay, now Gestalt psychology also criticized the school of behaviorism. Okay, now why
behaviorism come into light? Behaviorism come into light because behaviorism was against the school of structuralism. Behaviorism focus upon only behavior, nothing about consciousness. ठीक है, because we cannot measure the consciousness, we can measure the behavior. Okay, but this objection was raised by Gestalt psychology that we should also study consciousness, but as a whole. ठीक है, so this is against behaviorism. Okay, so Gestalt psychology objected against behaviorism and all those related systems that broke behavior into simple and discrete SR unit. His objection came true because from Gestalt psychology the nature of behavior was molar, which did not need discrete stimulus response unit. ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है ना? Or for we can also say Gestalt psychology was actually the study of both consciousness and behavior. Behaviorism, this focus only upon behavior, but Gestalt psychology was a study of both consciousness plus behavior. दोनों की सब बात होती थी. ठीक है, so this is the Gestalt psychology. This is the major criticism. Okay, that is why Gestalt psychology coming to light. Okay, now I just want to understand one thing, that see, everything is interrelated to each other. So you are reading Gestalt psychology or you are reading sensation, attention, perception, then it is not like that they are not related to other chapters. Okay, so Gestalt psychology is also there in learning chapter, it is also there in thinking and problem solving chapter. ठीक है, so just let me try a bit about how we can relate it to different topics. Okay, so this is actually the basic motive of this session, so that you can understand the linkage. Okay, and once paper 2 comes, then there would be a lot of linkage. ठीक है, पेपर में तो फिर भी लिंकेज कम हो पाती है, पेपर 2 में तो बहुत हो जाती है. पेपर 2 में तो हम बहुत ज्यादा देखेंगे. ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल. ठीक है, इस स्कूल का कंट्रीब्यूशन क्या क्या था. ठीक है, सो इट टॉक्स अबाउट परसेप्शन. ठीक है, परसेप्शन की तो बात की थी इन्होंने, है ना? सो गेस्टल्ट साइकोलॉजी टॉक अबाउट परसेप्शन. द मेजर पार्ट ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजी, 5 हेडिंग, परसेप्शन की 5 हेडिंग है. द फर्स्ट वन इज पार्ट होल साइकोलॉजी. ठीक है, पार्ट होल साइकोलॉजी के बारे में बात की थी. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी, फील्ड डायनामिक्स और पाई फिनोमेना एंड आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है, इनके बारे में इसने बात की थी. ठीक है ना, तो एक एक करके हम एक को देखते हैं कि ये मतलब चीजें क्या क्या है. पहला पार्ट होल साइकोलॉजी, तो होल हो गया. ठीक है, होल के बारे में बात की थी. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस प्रिंसिपल ऑफ प्रेगनास. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, दीज आर द थिंग्स. ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी मींस साइज कॉन्स्टेंसी, weight constancy, brightness constancy. ठीक है, so this is object constancy. Field dynamics, pi phenomena also we will read. Okay, but these 3 are very important. ये 3 ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो इनको देखते हैं. द फर्स्ट वन इज पार्ट होल साइकोलॉजी. तो इन दिस पार्ट होल साइकोलॉजी, व्हाट ही सेड, द होल इज शुड बी स्टडीड. ठीक है, हमें होल को पढ़ना चाहिए. ओके, सो दिस होल स्टडीड, if you have completed this chapter at least once, sensation, attention, perception, then you will get to know that this whole is also in it has also 2 major characteristics. दो major इसके characteristics होते हैं. These perceptual souls are unfilled holes. Okay, for example, we are studying like this is the whole part. Okay, so we should not break it down. ठीक है, इसको हम break it down नहीं करेंगे, है ना? So these holes are unfilled holes. इनको fill नहीं कर सकते. And not cluster of sensation. If we break this hole, अगर आपने इसको break कर दिया, let's say we do this, then the separate part become whole. ठीक है, तो ये जो separate part है ना, ये अपने आप में एक नया कुछ निकल के आ जाएगा. ठीक है, so if we try to break hole, something new will emerge. ठीक है, वो फिर कुछ नया बन जाएगा, है ना? It means if we see something, if we break down the whole, then the original characteristics of the whole will be lost. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सारे गामा पा हम बोलते हैं, सो दिस इज होल. सो इट मी इफ वी ब्रेक इट डाउन, सा अलग बोले, रे फिर कभी बाद में बोले, फिर ना मा फिर कभी बाद में बोले, सो द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी लॉस्ट. ओके, इन दिस वे गिटार ट्यून, ठीक है, कुछ आप गिटार इंस्ट्रूमेंटल बजा रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपने होल को पढ़ा तो ठीक है, अगर वो ब्रेक हो गया, देन something new will emerge, कुछ नया निकल के आ जाएगा, but the original characteristics will be lost. The second main thing related to part of psychology, that background is different. Okay,
for example, if you have seen the figure ground relationship, okay, I will also show some of the example to make it clear. So there is a one figure ground relationship. Okay, so what, अगर आप फिगर को बेसिस करके देखते हैं तो कुछ और दिखता है, ग्राउंड को बेसिस करके देखते हैं तो कुछ और दिखता है. ठीक है, सो दिस इज फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, है ना. तो सेकंड, such perceptual holes are separate and distinct from background, therefore they are segregated holes and not simply holes. Okay, so फिगर अलग है, बैकग्राउंड अलग है. ठीक है, दे शुड बी स्टडी सेपरेटली एज अ होल. ठीक है, उनको हमको सेपरेटली पढ़ना है और एज अ होल पढ़ना है. ओके, सो लाइक यू कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ दिस. Okay, so this is figure related to figure ground relationship. I think it is not visible over there. Yeah, I think now it is. Now you can see this. So here either you can see the like जो चेस की जो होती है वो आप देख सकते हो, और आपको अगर आप कुछ और ग्राउंड पर रखोगे तो आपको ह्यूमंस भी दिखेंगे, कुछ लोग खड़े हुए भी दिखेंगे. Okay, so this is figure ground relationship. Okay, what you are perceiving is based upon the background. ठीक है ना. So this is the second part. Perceptual whole are separate and distinct for the background. ठीक है, तो जो भी आप होल देख रहे हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, बैकग्राउंड से अलग होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, मेजर पार्ट हम देख रहे हैं ना. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. द सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, so principle of organization is very simple. In principle of organization, there are these are the criterias: similarity, proximity, okay, continuity, the spelling is wrong, pregnance, closure, and figure and ground relationship, which we have already seen. Okay, so what is principle of similarity? Means similar things are if there are some similar thing, if we see them as a whole, then they will continue, they will perceived as a single unit. ओके, ऐसी प्रॉक्सिमिटी, कोई चीज पास पास में होती है ना तो हम उसको एक ही में गिनते हैं. जैसे कुछ लोग पास पास में बैठे हुए हैं. ओके, सो वी विल परसीव देम एज अ होल इन वन लाइन और इन अ ग्रुप. ठीक है. ओके, सो these are the principle of organization. Okay, so just see this example, then it will be clear to you. Okay, see, principle of closure. These are circles but these are not closed. Okay, but we will see as a whole. ठीक है, जब हम होल की तरह देखेंगे तो क्या रहेगा कि these are closed, ये क्लोज सर्कल होते हैं. ठीक है, ऐसे ही हम इनको इस तरह से देखेंगे, इट इज अ ट्राइंगल. ओके, इट इज नॉट अ ट्राइंगल बट वी विल परसीव दिस एज अ ट्राइंगल. ठीक है, वी विल परसीव दिस एज अ स्टार. ठीक है. ओके, तो इस तरह से हम इनको परसीव करने की कोशिश करते हैं, है ना. सो दीज आर प्रिंसिपल क्लोजर, कंटिन्यूटी, कॉमन रीजन, प्रेगनास. ठीक है, सिमिलैरिटी. ठीक है, तो कुछ सिमिलर चीजें होती है तो वो सिमिलर देखने की कोशिश करते हैं हम उनको. तो ये आपको किसी भी बेसिक बुक से बुक में मिल जाएगा, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, काफी सिंपल होते हैं. ठीक है. ओके, इन दिस एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन सिमिलरिटी ऑफ द कलर. ये सिमिलर कलर में है तो हमको ऐसा सिमिलर वाले देखेंगे. ठीक है, ऐसे ही ये पास पास में तो पास में देखेंगे. सो ओके, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स. वी आर स्टडिंग एवरीथिंग एज अ होल. हम हर एक चीज को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं. जो थर्ड निकल के आता है इसमें वो होता है ठीक है, इसमें एक ये भी है, कॉन्स्टेंसी वाला भी होता है. ठीक है, सो दिस वी हैव सीन ना, पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी. ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी बोलता है कि देयर इज अ कॉन्स्टेंसी इन आवर परसेप्शन. ओके, फॉर एग्जांपल, यू आर लुकिंग टू योर फ्रेंड एंड इट इज एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, आपका दोस्त आपके पास में खड़ा हुआ है. ठीक है, अब अगर उसकी अगर वो दूर चला गया, आपसे दूर चला गया. ठीक है, तो उसका साइज कम हो जाएगा, आपको थोड़ा कम दिखने लगता है साइज, बट इट इज नॉट लाइक कि वो उसकी हाइट कम हो गई. ठीक है ना, वो तो वहीं का वहीं है. ओके, सो दिस इज कॉन्स्टेंसी. दिस इज द ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी, वेट कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी, है ना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द डोर ऑफ योर गेट. ठीक है, गेट का जब आप डोर ओपन करते हैं, है ना, तो इट चेंजेस इट्स शेप. ठीक है, व्हेन यू ओपन इट, बट इट इज नॉट लाइक दैट इट हैज चेंज कंप्लीटली इट्स शेप. ठीक है, वो रहेगा तो रेक्टेंगुलर ही, है ना. ओके, सो दिस इज द कॉन्स्टेंसी, है ना. तो ये ऐसी मतलब कुछ कॉन्स्टेंसी होती है जिसको हमको पता है कि ये चीज चेंज नहीं हो रही है, हम जा रहे हैं तो लगवाते हैं, बट वी आर यूजिंग अवर माइंड. तो दिस इज गेस्टाल्ट परसेप्शन. ठीक है, ये तो हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं ना. ठीक है, परसेप्शन क्या होता है, व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन इज व्हेन यू आर यूजिंग योर माइंड, व्हेन यू आर डूइंग इंटरप्रिटेशन योर माइंड. ठीक है, अपने माइंड का जब आप यूज कर रहे हैं, है ना. तो अगर कोई चीज आपके पास में है, अगर वो दूर चली गई तो वो उतनी की उतनी है, कॉन्स्टेंसी है वहां पर, वो चेंज नहीं हुई है. ओके, सो दीज आर थ्री थिंग्स related to perception. ठीक है, so definitely we are seeing Gestalt psychology. So Gestalt psychology has direct link with perception chapter, okay, which we will try to see more in upcoming slides. There are theories of perception also, but Gestalt psychology has also major link with learning chapter, okay, and in thinking and problem solving chapter.
ठीक है, वहां पर भी इसका लिंक होता है। तो अगर आप लर्निंग चैप्टर में देखोगे, सो लर्निंग चैप्टर इज आल्सो लिंक्ड विद गेस्टल साइकोलॉजी। ठीक है ना, वहां पर भी आपको इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगा, है ना। ओके, अब लर्निंग में क्या है, गेस्टल साइकोलॉजी, like the principles of Gestalt psychology also applied in the field of learning. Okay, how they are applied in the field of learning? So in learning we have seen insight learning, जो हमने insight learning देखा था, ठीक है, वो भी Gestalt psychologist तो थे। ठीक है, तो वो भी यही बात करते थे। They pointed out that learning was nothing but putting the perceptual reorganization of the field। ठीक है, तो ये क्या बात करते थे, जैसे बिहेवियरिस्ट के बोलते थे, लर्निंग इज एसआर रिस्पॉन्स, ओके, ऑन योर बिहेवियर। ओके, बट अकॉर्डिंग टू देम, learning has occurred when there is some perceptual reorganization। all the person, होता है ना ऐसा भी कि जब हमको सीख जाते हैं, then we see the situation in a new perspective, in a holistic manner। okay, so this is a new insight। ठीक है, ओके, सो इन लर्निंग सिचुएशन व्हेन द पर्सन सी एनीथिंग फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक नए पर्सपेक्टिव से देखेगा, वंस करेक्ट सॉल्यूशन इज रीच्ड, व्हेन वंस इनसाइट ऑकर्स, ओके, देन देयर इज अ सडन शिफ्ट इन योर परसेप्चुअल फील्ड। आपकी जो परसेप्चुअल फील्ड होती है ना, वहां पर एक सडन शिफ्ट आ जाता है, आपको एक नया कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू लर्निंग। ठीक है, इन द सेम वे वी कैन आल्सो रिलेटेड टू थिंकिंग चैप्टर। ठीक है, थिंकिंग में भी हम यही करते हैं। ओके, व्हेन वी सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वन शुड टेक द होल और द ब्रॉड व्यू ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, हम उसका एक ब्रॉड व्यू देखते हैं, हॉलिस्टिक मैनर देखते हैं ना, हम किसी चीज को सोचते हैं when we try to solve any kind of problem। okay, so this is also what gestalt psychology, है ना। तो काफी सारे experiment in thinking and problem solving, when you read this particular chapter, so there is an experiment conducted by Dunker and Mayer। ठीक है, तो वो वहां पर एक्सपेरिमेंट आएगा डंकर एंड मेयर का। तो वहां पर क्या होता है, दे इट वाज बेस्ड ऑन गेस्टल साइकोलॉजी ओनली। ओके, दे शोड दैट थिंकिंग शुड बी इंसाइटफुल, है ना, एंड व्हेन यू थिंक समथिंग इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द परसेप्चुअल फील्ड, पूरा का पूरा चेंज कर देता है। मायर का वो टू स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट था ना। ओके, आई थिंक यू कैन रिलेट, बट अभी आएगा थिंकिंग वाला आएगा, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। ओके, इट इज इन द, आई थिंक इसी टेस्ट में है, तो हम शायद पढ़ेंगे उसको। ठीक है, सो इट इज कनेक्टेड टू थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी आल्सो। ठीक है, तो मेमोरी से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी में क्या था, मेमोरी में अगर आपको याद होगा, तब जब रिकॉल करने की बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी हैव सीन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्रीवेबल क्लूज। ओके, सो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ट्रेस। ट्रेस छूट जाता है ना, ठीक है, जब भी आप कुछ चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, सो या आप उसको भूल जाते हैं, सो द ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट और द क्यू related to that particular concept wipe out, therefore you forget। okay, but gestalt psychology reject this concept। okay, according to them memory is also a dynamic process। ठीक है, मेमोरी क्या होती है, एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, तो ऐसा नहीं कि कुछ ट्रेस आया एकदम से उड़ गया और आप भूल गए सब कुछ। ठीक है, सो इट्स अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोसेस है, तो उस हिसाब से आप काम करते जा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज आल्सो इन रिलेशन टू मेमोरी आल्सो। ठीक है, सो फार वी हैव सीन that the major school, the Gestalt psychology, okay, it opposes structuralism, it opposes behaviorism। okay, then we first see the application, perception, learning, memory, and thinking। okay, now we focus major upon the concept of perception। ठीक है ना, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। in this particular chapter if you will see, these are the three major keywords: sensation, attention, perception। in sensation, after the sensation you read the theories of SDT, signal detection theory। in attention you read the theory of broadband filter theory, Treisman attenuation model, and Dutch model। okay, so these are the three theories in attention, and the last one is perception। two theories are important, the first one is bottom up processing and top down processing। ठीक है, गिब्सन एंड ग्रेगरी। okay, so these are the highlights। okay, so what are these keywords are related to, what are sensation? Sensation means everything, light, sound, which are coming into a sense organ। okay, this is sensation। attention means when you are paying your attention, when you're consciously aware about something, this is attention। perception means when you are trying to interpret the meaning with the help of your sensory organs, then it is perception। ठीक है, तो ये हमारा सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन होता है। सेंसेशन और परसेप्शन में अंतर क्या हो जाएगा, वो भी हम देख लेंगे। सेंसेशन में क्या होता है, आप जस्ट अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके उस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो। परसेप्शन में आप अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, है ना, यू आर इंटरप्रेटिंग द मीनिंग, मीनिंग को इंटरप्रेट कर रहे हैं ना परसेप्शन में। ठीक है, तो अगर हमें बेसिकली इसको डिफाइन करना हो, सेंसेशन हो गया, एक तरह परसेप्शन हो गया। ठीक है, सेंसेशन में आप देखेंगे
आप सिर्फ अपने सेंसरी ऑर्गन्स का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी चीज का तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो यू ओनली फोकस अपॉन द सेंसरी ऑर्गन्स, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है हम उनका बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन यू आर परसीविंग समथिंग, परसेप्शन में क्या हो जाता है, इन परसेप्शन यू आर आल्सो यूजिंग योर माइंड, माइंड का भी तो इस्तेमाल होता है, तभी तो आप किसी चीज को इंटरप्रेट कर पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप काफी सारी चीजों से मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक बता दिया, है ना। और भी डिफरेंस है, जैसे सेंसेशन में क्या होता है, सेंसेशन में आप स्टिमुलाई लेते हो, ठीक है, ओके, स्टिमुलाई से अवेयर होते हो, आप ये कह सकते हो। ठीक है, परसेप्शन में क्या होता है, परसेप्शन में आप इंफॉर्मेटिव हो जाते हो उस स्टिमुलाई के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। ओके, तो इस तरह से सेंसिटाइजेशन परसेप्शन हो जाता है ना। इसको आप और भी चाहें तो आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं या उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पैरामीटर की बेसिस पर, कि दोनों का सोर्स क्या होता है। मतलब जब भी आंसर आए ना, तो आप ऐसे करने की कोशिश किया करो, दोनों का सोर्स क्या है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ द सेंसेशन इज द सेंसरी ऑर्गन, बट द सोर्स ऑफ परसेप्शन इज इंफॉर्मेशन सेंट टू द ब्रेन थ्रू सेंसेशन। ठीक है, ओके, सो दिस कुड बी द वन डायमेंशन। ओके, प्रोसीजर कुड बी वन डायमेंशन, प्रोसीजर क्या निकल के आता है। ओके, सेंसेशन इज जनरली अ बायोलॉजिकल प्रोसीजर, ठीक है, सेंस ऑर्गन से तो आ रहे हैं, स्मॉल क्या हो रहा है, बट परसेप्शन हैज मोर साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, बिकॉज इन परसेप्शन द पर्सन इज गेटिंग इनसाइट, ओके, पर्सन एक्सपीरियंसेस इफेक्ट, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस निकल के आते हैं, है ना। ओके, सो दिस कुड ऑर्गन्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सेंसरी सेंसेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ओनली सेंसरी ऑर्गन्स, बट इन परसेप्शन योर होल बॉडी गेट इन्वॉल्व। ओके, so in this way also you can like differentiate sensation and attention. I think it has been asked in PYQ also. So whenever there is any question of differentiation, then try to differentiate with this on this basis, ठीक है, पैरामीटर के बेसिस पे हमको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो दीज आर डिफरेंसेस, ठीक है, आप इनको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। ठीक है, सो दिस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। ओके, अब इसमें क्या करना है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में देयर इज वन पे ऑफ मैट्रिक्स। Okay, the concept of absolute threshold and GND. This is also important. So what is absolute threshold? It is the minimum intensity at which participants can identify 50%. ठीक है, okay, so for example, there is 1 liter water, ठीक है, 1 liter water है, अब उसके अंदर 1 टीस्पून आपने डाला, नो इफेक्ट। ओके, सो 1 टीस्पून, ओके, और 1 टीस्पून इन 1 liter वाटर, नो इफेक्ट। देन 2 टीस्पून, अगेन नो इफेक्ट। ओके, 3 टीस्पून, अगेन नो इफेक्ट। ओके, 4th टीस्पून, देन देयर इज इफेक्ट। ठीक है, फोर्थ पे का इफेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, है ना। सो एट विच पार्टिसिपेंट्स कैन आइडेंटिफाई एटलीस्ट 50%। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि इसमें अगर कुछ अंतर आना शुरू हो गया फोर्थ नंबर से। ओके, सो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। द सेकंड वन इज डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, इट इज आल्सो नोन एज जेएनडी। ठीक है, अब ये क्या होता है, जेएनडी मींस डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ नंबर। ठीक है, ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर है ना, इनके बीच में डिफरेंस, है ना। सो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बात करेगा मिनिमम इंटेंसिटी, लोएस्ट वॉल्यूम, स्मॉलेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, इस तरह की बात करेगा। लाइटेस्ट, ईएसटी रहेगा उसमें, सुपरलेटेड डिग्री लगेगी। बट ऑन द अदर हैंड, डिफरेंस थ्रेशोल्ड विल टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना, इसकी बात करता है जीएनडी, दिस इज जीएनडी। ठीक है, ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर इज आल्सो वन लॉ। ठीक है, एक लॉ निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं वेवर्स लॉ। ठीक है, वेवर्स लॉ क्या बोलता है, डेल्टा आई अपॉन आई इक्वल्स टू के, कांस्टेंट। ठीक है, ओके, तो डेल्टा आई यानी कि आपकी इंटेंसिटी हो गई, ओरिजिनल इंटेंसिटी, डेल्टा सॉरी आई ओरिजिनल इंटेंसिटी, डेल्टा आई इज योर चेंज इन द स्टिमुलस और चेंज इन द इंटेंसिटी। ओके, एंड इक्वल्स टू के, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज वेवर्स लॉ, ये हमारा वेवर्स लॉ हो जाता है। ठीक है, but this particular Weber's law was later modified by Fechner. Okay, so if you have read the introduction chapter, or this is the question in the test series also, that Weber's law, psychophysics start with Weber's, but it has gone up to a great height under the uh, Fechner. ठीक है, तो Fechner is also important. This is Weber law. The second important name is Fechner.
ठीक है, Fresnel is also important. So Fresnel has modified this particular relation. He has given S equals to K log I. S equals to K log I. Okay, so he has made this particular relation, है ना? S is S is psychological, S is subjective magnitude. Okay, this is the magnitude. K is constant, or I is stimulus intensity. ठीक है, so this is Fresnel law. After this, all many other laws also come into place, like Stevens power law. Okay, but that is not that much important. उसके बारे में इतना पूछते नहीं है. Okay, then this kind of concept also used in signal detection theory जब हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो वहां पर भी होता है. Signal detection theory basically studied when we try to get information in uncertainty. Okay, so for example, when doctor check a patient hearing capabilities, ठीक है, तो उनको अलग अलग साउंड सुनाई देते हैं ना, तो वहां पर वो डिसीजन कैसा लेंगे, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होंगे, किस पे वो डिसीजन लेंगे, है ना? तो वहां पर सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन विद अनसर्टेनिटी. तो कुछ अनसर्टेनिटी होंगी, वहां पर आप डिसीजन कैसे ले सकते हो. ओके, सो इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2. रडार में इसको यूज किया गया था. It has various psychological application in research also, real life also. Okay, it has very a simple payoff matrix. इसमें एक बहुत ही सिंपल सी payoff matrix होती है. Okay, so for example, a doctor is checking the patient, है ना? Doctor is checking the patient. Now, doctor is checking the report of the patient. Sorry, ठीक है, तो डॉक्टर पेशेंट की रिपोर्ट देख रहा है. तो अब वो सिग्नल, लेट्स से ही इज चेकिंग द whether the patient has brain tumor or not. ठीक है, तो वो चेक करेगा. ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर या तो प्रेजेंट हो सकता है उस रिपोर्ट को चेक करने के बाद, या फिर एब्सेंट हो सकता है. ओके, सो व्हेन ही करेक्टली आइडेंटिफाई दैट यस देयर इज द ब्रेन ट्यूमर, देन इट्स अ यस. अगर उसने यस बोला, ओके, और दूसरे केस में वो नो भी बोल सकता है. ठीक है, अगर मान लीजिए उसने यस बोला, इफ यू सेड यस, ओके, एंड यस द ट्यूमर इज आल्सो प्रेजेंट, देन इट्स अ हिट. करेक्ट बता दिया ना उसने. ठीक है, ओके, बट द ट्यूमर इज नॉट प्रेजेंट एंड स्टिल ही सेड इट. ठीक है, ओके, उसने प्रेजेंट बोल दिया उसको, सो इट्स अ मिस. मिस हो गया उससे. ठीक है, ओके, अगेन इफ इट इज प्रेजेंट और उसने बोल दिया कि नहीं है, एब्सेंट है ना, तो मतलब क्या हो गया, ये गलती हो गई. गलती हो गई तो मतलब फॉल्स अलार्म हो गया. ठीक है, और नहीं है और उसने भी यही बोला कि एब्सेंट है, तो मतलब क्या हो गया, करेक्ट रिजेक्शन. ठीक है, ये हो गया करेक्ट रिजेक्शन. ओके, सो दिस इज these are the some payoff matrix. ठीक है, ओके, the chances that it should be like the hit should be more and correct rejection. ठीक है, ये होना चाहिए तो बेटर रहता है. ओके, हिट और correct rejection रहेंगे तो हमारा काम बिल्कुल सही बैठेगा. ठीक है, सो दिस इज द पे ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड टू एसडीटी. अब इसमें देखिए, देयर आर सम फैक्टर्स आल्सो which affect the signal detection process. Okay, the first important factor is related to information. Okay, so in the case of like doctor, whether the doctor has proper training for this or not. ठीक है, अगर ट्रेनिंग सही होगी तभी तो काम सही बैठ पाएगा ना. सो दीज आर द फैक्टर ऑफ एसडीटी, या जब भी हम डिसीजन बनाते हैं. ओके, सो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. ओके, क्राइटेरियन इज अ फैक्टर. फॉर एग्जांपल, देयर आर टू क्राइटेरियन, वेदर द डॉक्टर और जो भी टेस्ट वगैरह कर रहा है वो कंजर्वेटिव है या लिबरल है. Okay, so this will also determine. Okay, so for example, the one who is conservative, so conservative will take the decision like no, बोलने की chances ज्यादा होती है, चलो ठीक है दवाइयों से काम चल जाएगा, अभी मत कराओ ऑपरेशन. Okay, on the other hand, the liberal one is like they have more tendency to say yes. ठीक है, so whenever the decision criteria is about to make, conservative has a tendency to say no and liberal has a more tendency to say yes. Okay, so this is decision criteria. The last one is noise. ठीक है, तो नॉइस भी तो आती है, वो भी तो आपके डिसीजन पे इफेक्ट डालेगी. तो एक हमारा एक्सटर्नल नॉइस होता है, एक हमारा इंटरनल नॉइस होता है. ठीक है, तो एक्सटर्नल नॉइस मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल नॉइस मींस ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, उसकी वजह से आ जाता है. ठीक है, ओके, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज which you need to read. Okay, I cannot show you the graph right now, but if you google it then you will get to know. There is ROC curve. ओके, सो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो अगर आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर जब भी
कोई या फिर कोई रेडियोलॉजिस्ट आप देखो, तो है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। और आल्सो इफ यू हैव कंडक्टेड एनी टेस्ट, सो दे टेक 3 to 4 टेस्ट एंड देन टेक द एवरेज, उसका एवरेज लेते हैं। घर पे हम बीपी चेक करते हैं तो पहले 3 निकालते हैं, फिर 3 का एवरेज लेते हैं ना। ओके, सो दीज आर द रेंज ऑफ ऑप्शन दैट अ सब्जेक्ट हैज, ठीक है। दिस इज आरओसी कर्व। आरओसी कर्व मींस रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। रिसीवर ऑपरेटिंग, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ओके, सो दीज आर द रेंज ऑफ ऑप्शन दैट अ सब्जेक्ट हैज, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के रेंज ऑफ ऑप्शन होते हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोस रेंज ऑफ ऑप्शन द पर्टिकुलर रेडियोलॉजिस्ट ट्राई टू मेक डिसीजंस, ठीक है। ओके, सो दे विल ट्राई टू एलिमिनेट द नॉइज। फॉर एग्जांपल देयर इज वन, लेट्स एक ले लेते हैं बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये सिग्नल है, एक ये सिग्नल है। ओके, सो दिस इज द सिग्नल एंड दिस इज द नॉइज। ओके, सो देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप, तो यहाँ पे तो दिक्कत आएगी। ओके, सो व्हाट व्हाट द रेडियोलॉजिस्ट हैज टू डू, ही नीड टू रिड्यूस द नॉइस, ठीक है। जितना नॉइस को रिड्यूस करेंगे तो उतना बेटर डिसीजन निकल के आ पाएगा, ठीक है। तो ओके, नॉइस को जितना अलग करेंगे, ओके, सेपरेट द नॉइस फ्रॉम द डिसीजन यू आर मेकिंग, उसको आप सेपरेट कर दो, ठीक है। सो इन दिस वे देयर आर वेरियस रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू द रेडियोलॉजिस्ट, और जो भी करते हैं उस हिसाब से वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एसडीटी, some related to SDT. Then SDT is related to attention, sorry, sensation, particular topic, and then we will see attention. Attention means your concentration, your consciousness, awareness. Okay. Now in attention we read certain theories. कुछ हम theories के बारे में देखते हैं. So the first theory is broadband filter theory. Okay, so just overview we'll see in detail. You can see, you will Google them, then you will get to know. In broadband filter theory, it is also known as early selection model of attention. Okay, early selection model of attention. This is okay. So according to broadband filter theory, the information is first filtered and then analyzed into meaning. पहले आप चीज को फिल्टर करोगे, उसके बाद फिर वो एनालाइज होगी, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नाउ इट विल फिल्टर आउट ओवर हियर। ओके, फिल्टर कर दी, है ना, फिल्टर हो गई। अब उसके बाद एक एक इंफॉर्मेशन गई आपकी वर्किंग मेमोरी में, ठीक है। सो यू फिल्टर आउट इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टोन, pitch, etc., etc. Okay, so this is Broadband filter theory. It is also known as early selection model of attention. It says that analysis come later on. ठीक है, ये आप समझो, इंफॉर्मेशन फिल्टर पहले हो जाती है, उसको हम एनालाइज बाद में करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज Broadband filter theory and he arrived to this particular decision with the help of dichotic listening task. ठीक है, now this particular uh, theory has also वेरियस लिमिटेशन, ठीक है। काफी सारी लिमिटेशन इसकी होती है। एक एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज वन एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन, व्हिच इज नोन एज डियर आंट जेन एक्सपेरिमेंट। उसको हम डियर आंट जेन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय ग्रे एंड बुटरवन। अच्छा, ये नीचे है। ओके, आई थिंक यू कैन सी दिस डियर आंजन एक्सपेरिमेंट, ग्रे एंड वुडरबर्न, इन्होंने दिया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, लेफ्ट ईयर में और राइट ईयर में, दिस इज लेफ्ट ईयर, राइट ईयर। इन लेफ्ट ईयर उनको सुनाया गया डियर 3 जेन, राइट ईयर में 6 and 5। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी यू विल लिसन फर्स्ट दिस। आप कैसे सुनेंगे, डियर 3 जेन, अगर आपको बोला कि रिकॉल करो इनको, तो रिकॉल कैसे करोगे आप, पहले आप लेफ्ट ईयर का बताओगे, राइट ईयर का बताओगे, या फिर आप राइट ईयर का बताओगे, लेफ्ट ईयर का बताओगे, एनालाइज नहीं करोगे पहले, ठीक है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, डियर 3 जेन 6 and 5, या 6 and 5 डियर आंट जेन। ओके, बट इट विल नॉट हैपन, है ना। आप कैसे करते हैं, हम ऐसे तो ना बोलेंगे, ये तो ब्रॉडबैंड फिल्टर ने बताया ना, हम तो कैसे बोलेंगे, हम तो ऐसे बोलेंगे ना कि डियर आंट जेन, ओके, और 65। ओके, इट मींस दैट यू आर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। ओके, आप एनालाइज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, है ना, फिल्टर नहीं कर रहे हो। इसमें क्या बोला था ब्रॉडबैंड ने, क्या फिल्टर कर देते हो, एनालाइज वाला काम बाद में आएगा, है ना। सो इन दिस वे इट हेवीली क्रिटिसाइज दिस ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी, ठीक है, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, है ना। नाउ द सेकंड वन इज ट्रीटमेंट अटेंशन मॉडल, ठीक है। तो ये कुछ फिल्टर मीटर की बात नहीं करेगा,
है ना, ये अटेंशन एक्चुअली नहीं, इसमें एटुनेशन होता है। ओके, दिस इज एटुनेशन मॉडल। ठीक है, तो ये फिल्टर की बात ही नहीं करता, ये क्या बोलता है कि हम चीजों को एटुनाइज कर देते हैं। ओके, उनको उनकी वॉल्यूम को कम कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग राइट नाउ एंड like from environment there is a sound of the TV, ठीक है, रेडियो, एंड कुछ बाहर काम भी चल रहा है ना, तो आप क्या करोगे, आप कुछ फिल्टर विल्टर का काम नहीं करोगे, ठीक है, यू एटेनुएट, जस्ट लाइक वी डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, वॉल्यूम टीवी की वॉल्यूम को कम कर देते हैं ना, ऐसे ही जो अनरिलेटेड या अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आप उसका वॉल्यूम कम कर दोगे। ठीक है, ओके, तो एटेनुएटर लगता होता है। ठीक है, फिर आप तो उसको एटेनुएट कर दो, जैसे मान लो ये 3 मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आपने इसको बड़े वाले मैसेज को अच्छी तरीके से लिया, छोटे वाले मैसेज को आपने एटेनुएट कर दिया। ठीक है ना, उसकी वॉल्यूम को कम कर दिया, है ना, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओके, सो दिस इज नोन एज एटेन्यूएशन थ्योरी। ठीक है, ये हमारी एटेन्यूएशन थ्योरी बोलती है। ठीक है ना, तो ये नहीं बोलती कि फिल्टर मिल्टर आप करो, आप सिर्फ उसको मतलब थोड़ा सा कम कर दो, एटेन्यूएट कर दो। ठीक है, ओके, एंड द लास्ट वन इज डच एंड डच मॉडल। इट टॉक्स अबाउट, इट इज आल्सो नोन एज लेटर फिल्टर। ठीक है, और लेटर सिलेक्शन। जैसे ब्रॉडबैंड क्या था, अर्ली वाला था, ये लेटर की बात करता है। ठीक है, ये क्या बात करेगा कि पहले आप एनालाइज करते हो, फर्स्ट यू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन एंड देन यू टॉक अबाउट द मीनिंग। ठीक है, उसके बाद आप मीनिंग की बात करोगे। ठीक है, ओके, तो पहले इन्फॉर्मेशन आएगी, ये देखो आ गई ना। ओके, आपने इसको परसीव किया पहले। ओके, परसेप्शन पहले हो रहा है, यू आर परसीविंग द इन्फॉर्मेशन एंड देन एवरीथिंग, फिल्टर मिल्टर करना है नहीं करना वो आप बाद में देखोगे। ठीक है, तो एनालिसिस कम फर्स्ट, ये क्या बोलता है, एनालिसिस कम्स फर्स्ट। ठीक है, सो दिस इज डच एंड डच मॉडल। ओके, तो इन अटेंशन there are three theories. The first one is Broadband filter, the second one is Friesman, and the third one is Dutch and Dutch model. Okay, Broadband talks about early selection, Friesman talk about no selection, volume कम कर दो, attenuate कर दो, and Dutch talks about later selection. ठीक है, बाद में select करेंगे, है ना। So this is Dutch and Dutch model. Now some theories of perception is also there. ठीक है, अब हमने sensation का देखा, अटेंशन का देखा, अब हम परसेप्शन का देखेंगे। ठीक है, नाउ इन परसेप्शन, परसेप्शन पहले होता क्या है, व्हाट इज परसेप्शन, परसेप्शन मींस यू आर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड, यू आर रिकॉग्नाइजिंग द वर्ल्ड, यू आर यूजिंग द ब्रेन। ठीक है, अब हम ब्रेन का यूज कर रहे हो। ठीक है, सो सेंसेशन में तो क्या था, आप 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें आप सेंसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज परसेप्शन, ये हमारा परसेप्शन होता है। ठीक है, सो यू आर यूजिंग प्रायर नॉलेज आल्सो। ठीक है, अगर आप कोई चीज को परसीव करते हो तो आपके माइंड में जो नॉलेज है पहले से, उसका भी तो यूज करते हो। ठीक है, सो यू आर यूजिंग प्रायर नॉलेज आल्सो, योर एक्सपीरियंसेस आल्सो, सबका इस्तेमाल करते हैं, है ना। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन देयर आर टू थ्योरीज, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ठीक है, एक होती है बॉटम अप प्रोसेसिंग, एक होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो जैसे इंट्रोडक्शन, पर्सनैलिटी, लर्निंग, मेमोरी, क्या देखा है हमने, नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, तो ऐसे ही परसेप्शन में ही हो जाता है। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस परसेप्शन थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन भी आए हैं, कंपेयर बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच, तो काफी सारे क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। बॉटम अप अप्रोच में क्या हो जाता है, ठीक है, व्हाट इज देयर इन बॉटम अप अप्रोच। नाउ बॉटम अप अप्रोच is related to data driven, it relies on sensory information, takes place in real time. अब जो मतलब बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन बाय गिब्सन। ठीक है, गिब्सन ने दिया था ये अप्रोच। ठीक है, अब जो बॉटम अप, इट इज डेटा ड्रिवन। ओके, अकॉर्डिंग टू बॉटम अप्रोच द परसेप्शन इज डायरेक्ट। ओके, enough they said that there is enough information available in the environment. ओके, सो जस्ट परसीव द थिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो परसेप्शन जो होता है ना इनके अकॉर्डिंग, परसेप्शन एक डायरेक्ट प्रोसेस है, आपको माइंड माइंड यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट नीड एनी लर्निंग, नो एक्सपीरियंस, नथिंग। ओके, सो इट्स अ डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, रिलाइज ऑन सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो आप देख रहे हो बस उसी पर रिलाई करो, माइंड माइंड यूज नहीं करना, लर्निंग बनने का कोई काम नहीं है। ओके, सो दिस टेक्स प्लेस इन रियल टाइम। ठीक है, ओके, सो देर इज नो नीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, है ना, नो लर्निंग इज रिक्वायर्ड, नो मेजर लर्निंग इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। ओके, तो ये हमारा बॉटम अप प्रोसेसिंग होता है। नाउ दिस बॉटम अप प्रोसेसिंग इज डायरेक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो इन्फॉर्मेशन एनवायरमेंट में है, जैसे वहां के शेप हो गए, साइज हो गए, डिस्टेंस हो गए, दीज आर सफिशिएंट। ठीक है, ओके, नाउ दिस बॉटम अप प्रोसेस इज सेइंग दैट जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है उससे काम हो जाएगा, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज इकोलॉजिकल थ्योरी। इसको हम इकोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं, इकोलॉजिकल कंसेप्ट भी बोलते हैं।
ठीक है, so this is bottom up processing. Now to oppose this, second perspective will come, which is known as top down processing. Okay, so it's a schema driven. You will use your mind, you will rely on knowledge and experiences, and it was given by Gregory. ये हमारा ग्रेग ने दिया था। ठीक है, तो ऐसे करके दो चीजें हो जाती है ना। नाउ बॉटम अप्रोच इधर लिखा भी हुआ है, गिब्सन ने दिया था। परसेप्शन डायरेक्ट प्रोसेस होती है, नो लर्निंग रिक्वायर्ड, इकोलॉजिकल थ्योरी, नो नीड ऑफ प्रोसेसिंग। इन द सेम वे, सो दिस इज बॉटम अप्रोच। नाउ देयर आर सम सपोर्टिंग एविडेंसेस आल्सो। ठीक है, तो दिस यू विल, अगर इफ यू जस्ट पुट द नेम ऑफ दीज ऑन गूगल, सो यू विल गेट इट क्लियरिटी। ठीक है, इन सबको लेकर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, सो जैसे स्टार्ट विथ एफर्डेंसेस। ठीक है, तो एफर्डेंसेस क्या होता है? एफर्डेंसेस मींस योर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ग्रास्प कैपेसिटी, आप टेबल में पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग ऑन द टेबल एंड सडनली अ कॉकरोच कम ऑन योर टेबल, सो व्हाट यू विल डू, यू विल थ्रो देम। तो दिस इज एफर्डेंसेस, योर थ्रो एबिलिटी। नाउ इसके लिए थोड़ा ना आपने कुछ सीखा मीखा होगा। ओके, आपको आया, एकदम से पकड़ा, आपने फेंक दिया, तो आप सोच रहे हो क्या 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 मैंने पहले क्या किया था कॉकरोच के साथ में, अब क्या करूं कॉकरोच के साथ में? कुछ नहीं कर रहे ना। सो दिस इज योर थ्रो एबिलिटी। ठीक है, आपने एकदम से उसको थ्रो कर दिया। ठीक है, सो दिस इज अफोर्डेंसेस, है ना। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनको हम वैसी, अब जैसे चेयर है, चेयर पे बैठोगे, ठीक है, चेयर को सर पे नहीं रखोगे। ठीक है, तो अगेन जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, आपने उठाया उसको कर दिया। ठीक है, सो दिस इज एफर्डेंसेस। द नेक्स्ट वन इज इनवेरिएंट फीचर्स। ठीक है, अब इनवेरिएंट फीचर्स आर रिलेटेड टू एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट विच डू नॉट चेंज। ठीक है, तो कुछ एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट होता है जो कभी चेंज नहीं होता, और आप उसको ऐसे ऐसे ले लेते हो। ठीक है, जैसे टेक्सचर। ठीक है, तो आप अगर रेगिस्तान में गए होगे ना, टेक्सचर चेंज हो जाता है उसका, है ना। अब ये एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है जो चेंज नहीं होगा। लीनियर पर्सपेक्टिव, लाइक पैरेलल लाइंस अपीयर टू कन्वर्ज एज दे रिसीड इनटू डिस्टेंस। ओके, दिस इज लीनियर पर्सपेक्टिव, ये भी कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा इनवेरिएंट फीचर्स हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंट में है, उसको चेंज नहीं करना, आप उसी से सब कुछ समझ सकते हो। ऐसे ही हमारा ऑप्टिकल एरे होता है। ऑप्टिकल एरे क्या? ऑप्टिकल एरे इज पैटर्न ऑफ लाइट। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ लाइट के बेसिस पे भी तो आप चीजों को देखते हो ना। ठीक है, उसमें भी कोई चेंज तो ना होता है, ऑप्टिकल फ्लो पैटर्न। ठीक है, ओके, सो लाइक ऑप्टिकल फ्लो पैटर्न या लाइट में जब चेंज होता है तो इट आल्सो कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। ठीक, कैसा मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट आप देखते हैं ना, लाइट अगर फ्लो हो रही है इस तरीके से तो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पर्सन एक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, या पर्सन स्टैटिक है, कोई कार स्टैटिक है, तो पैटर्न ऑफ लाइट चलती रहती है, उसी के हिसाब से आप उसको देखते रहते हो। ओके, सो दिस इज ऑप्टिकल एरे, दिस इज इन्वेंटेड फीचर रिलेटेड टू टेक्सचर। ठीक है, रिलेटिव साइज, है ना, रिलेटिव स्पीड, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, है ना। और एफर्डेंसेस मींस योर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। ऐसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या था? इट इज प्रायर नॉलेज, यू नीड मेंटल प्रोसेस, हाइपोथेसिस, मेंटल प्रोसेस का आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। नाउ देयर आर सम सपोर्टिंग एविडेंसेस फॉर दिस आल्सो। ठीक है, इसके लिए भी कुछ सपोर्टिंग एविडेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइपोस बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, तो इसको आप अगर करेंगे ना गूगल पे तो आपको दिख जाएगा। टाइपोस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे अब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो टाइपिंग बहुत गलत लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन उनको पढ़ लेते हैं जो मेडिकल की दुकान शॉप वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब आपने माइंड का यूज करते हैं। ओके, तो अगर मैंने कोई वर्ड लिख दिया, वो गलत भी है लेकिन आप उसको सही पढ़ोगे। ठीक है, तो दिस इज टाइपोस। अगर उसमें कुछ गलतियां होती हैं तो आप उसको पढ़ोगे सही। ठीक है, आप क्यों उसको सही पढ़ रहे हो? बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज। आप बोलोगे ना इसमें गलती है, कोई बात नहीं, मैं इसको सही पढ़ लूंगा। दिस इज टॉप टर्न प्रोसेस। ओके, यू आर यूजिंग योर माइंड, आप अपने माइंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें डायग्राम नहीं। ओके, टॉप डाउन प्रोसेस का डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो टॉप डाउन प्रोसेस मतलब सॉरी टाइपोस का मतलब यही होता है, अगर मिस्टेक्स होती है राइटिंग के टाइम पर, सो यू कंसीव देम करेक्ट बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, ओके। नेकर क्यूब। ओके, सो नेकर क्यूब इज गिवन बाय एल्बर्ट लेकर और रिडले स्टूप ने इनको दिया था। अभी भी क्या होता है, देखो जैसे ये क्यूब है। ठीक है, नाउ इसमें देखिए क्यूब में ये क्यूब है, अब ये वाला पार्ट पे कलर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप ये भी बोल सकते हो कि टॉप वाले पार्ट में कलर है। ठीक है, ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बॉटम वाले पार्ट में कलर है, क्योंकि वो तो क्यूब है ना। ठीक है, यू कैन आल्सो से दैट दिस पार्ट इज कलर्ड, यू कैन आल्सो से दैट दिस पार्ट इज कलर्ड, बॉटम वाला। इधर बोलोगे टॉप, इधर बोलोगे बॉटम। Okay, so it depends upon you. It depends upon your perception. You can make two different hypotheses. You can also say कि ये वाला है, आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला है। कांस्टेंट थोड़ी ना है, जैसे ऑप्टिकल एरे, फ्लो ऑफ पैटर्न, फ्लो ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है आपके लिए भी मेरे लिए भी। टेक्सचर,
रेगिस्तान का टेक्सचर कांस्टेंट है आपके लिए भी मेरे लिए भी, जो बॉटम अप बात करते थे, लेकिन यहाँ पे तो ये कांस्टेंट नहीं है ना, जैसे घुमा तो आप वैसे देख लो। ओके, सो दिस इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टूप इफेक्ट। ठीक है। अब स्टूप इफेक्ट में भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, जैसे देखो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप ये वर्ड्स लिखोगे, तो अब इसमें आप माइंड यूज करोगे, है ना, तो माइंड यूज करके आप बता पाओगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो हियर यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन। जैसे आप इसमें क्या करो, आप ये वाली लाइन देखो, इन कंप्यूटर वाली। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन स्टूप इफेक्ट, दे विल आस्क यू टू नेम द कलर ऑफ द वर्ड। ठीक है, आपको क्या पूछेंगे, आपको कलर ऑफ द वर्ड पूछेंगे, दे विल आस्क यू टू नेम द कलर ऑफ द वर्ड इंस्टीड ऑफ रीडिंग द वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, आपको वर्ड को रीड नहीं करना, आपको कलर ऑफ द वर्ड बताना है। ठीक है, अब जब कलर ऑफ द वर्ड आप बताओगे, सो इट हैज बीन फाउंड दैट जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, सो देयर इज डिले इन रिएक्शन टाइम। So it is harder to name the color of the word when the word which you are spelling is written in another color. ठीक है। ओके, अगर दूसरे कलर में लिखा जाता है तो उसको आपको बताने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने माइंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है। ओके, आप अपने माइंड में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ स्टोर करें या कुछ अपना परसेप्शन परसेप्शन लगा दें। ठीक है, सो अगेन यू आर यूजिंग अ परसेप्शन। ठीक है, आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ठीक है, सो दिस इज हमारा स्टू परफेक्ट हो गया। ओके, सेम इज ऑडिटरी इल्यूजन। ठीक है, तो फोन पे भी कभी कभी ना कोई अलग इन्फॉर्मेशन बताता है, या फोन पे ना फोन कट हो जाता है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन सुन नहीं पाते हो, बट यू अगेन इंटरप्रेट इट, आप उसको भी इंटरप्रेट कर लेते हो अपने हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू ऑडिटरी इल्यूजन। इसी इट इज आल्सो नोन एज फोनेमिक रिस्टोरेशन। इसी को फोनेमिक रिस्टोरेशन बोलते हैं। किसी ने पूरी इंफॉर्मेशन बताई नहीं है, तो आपने उसको स्टोर कर दी। ठीक है, सो ओके, सो दीज आर टू अप्रोच, है ना, दो अप्रोच होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा दिया था WARREN, वॉरेन ने, और स्टूप ने दिया था। नेकर क्यूब आपको बता दिया मैंने, टाइपोस गोल्डस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो ये हमारे अप्रोच हो जाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच। ओके, सो वेन एवर दे विल आस्क यू अबाउट परसेप्शन, यू विल मेंशन बोथ द पर्सपेक्टिव, एंड व्हेन यू कंक्लूड द आंसर, कंक्लूड में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं कि दोनों को मिला दो तो काम हो जाएगा। ओके, सो व्हेन टॉप डाउन प्लस बॉटम अप दे बोथ कंबाइन विद ईच अदर, देन इट बिकम अ बेसियन अप्रोच, उसको हम बोलते हैं बेसियन अप्रोच। Okay, so it was given by Cassina et al. They argue that human perception is a combination of using both our senses as well as previous knowledge. ठीक है, दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज अवर बेसियम अप्रोच, ये हमारा बेसियम अप्रोच होता है। ओके, तो इन दिस वे दीज आर रिलेटेड टू सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन। तीन हो गया, सेंसेशन में SDT, अटेंशन में ब्रॉडमैन, ट्रीजमैन और डच एंड डच मॉडल, परसेप्शन में ग्रेगरी और गिब्सन। ठीक है, ये हमें दो अप्रोच देखे। ठीक है, तो नाउ द सेकंड, द लास्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग रिलेटेड टू डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, अब डेप्थ परसेप्शन क्या होता है, डेप्थ परसेप्शन यानी कि आपकी एबिलिटी टू सी थ्री डायमेंशनल। ठीक है, आप थ्री डायमेंशन में देख पा रहे हो, है ना, ये आपकी एबिलिटी होती है, दिस इज नोन एज डेप्थ परसेप्शन। ओके, नाउ इन डेप्थ परसेप्शन अगर नहीं होगा, द वर्ल्ड वुड लुक लाइक अ फ्लैट सरफेस। ओके, नाउ फॉर डेप्थ परसेप्शन देयर आर टू बेसिक थिंग। द बेसिक सोर्स ऑफ डेप्थ परसेप्शन इज रेटिनल डिस्पेरिटी। रेटिनल डिस्पेरिटी क्या होता है, मतलब आपकी आंख, जैसे आप लेफ्ट आई बंद करके राइट आई से कुछ दिखोगे, राइट आई बंद करके लेफ्ट आई से दिखोगे, तो दोनों में डिस्टेंस दिखता है ना, दिस इज रेटिनल डिस्पेरिटी। इसी की बेसिस पर आप किसी चीज को परसीव कर पाते हो। ठीक है, तो अ डिस्क्रिपेंसी इन द इमेज दैट रीच द राइट एंड द लेफ्ट आई, और जनरली इतना होता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज दिट इट हेल्प यू टू परसीव समथिंग। ठीक है, तो दैट परसेप्शन में आपकी ये हेल्प करता है, कौन, रेटिनल डिस्पेरिटी। सेकंड कंसेप्ट जो होता है, और जब ये अलग अलग इमेज, जैसे मान लीजिए आप एक किसी एप्पल को देख रहे हैं, है ना, लेफ्ट आई से देखा, राइट आई से देखा, और जब वो इमेज फ्यूज हो गई, देखोगे तो आप एक एप्पल ही ना, ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट आई से कुछ और आ जाएगा, राइट आई से कुछ और आ जाएगा, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेटिनल डिस्पेरिटी, व्हेन टू डिफरेंट इमेजेस फ्यूज एंड इट इट बिकम अ ओरिजिनल, एक ओवरऑल इमेज बनती है, होल इमेज बनती है, तो उसको हम स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आ जाती है ना, और ये कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, व्हेन यू लुक एट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, द लाइंस ऑफ विजन फ्रॉम योर आईज आर पैरेलल। ठीक है, तो कन्वर्ज हो जाती है ना। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हो तो आपको लगता है पैरेलल, आपको देखने को मिलती है नॉट लाइंस। ठीक है, सो दिस इज कन्वर्जेंस। ओके, सो दीज कंसेप्ट कम्स अदर बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज होते हैं, उसके अंदर आते हैं दोनों आंखों से, बाइनो यानी कि दोनों आंखों से आप देख रहे हो, इसी के हिसाब से ये होते हैं बाइनोक्यूलर, रेटिनल डिस्पेरिटी और कन्वर्जेंस और स्टीरियोटॉपिक विजन। ऐसे ही हम एक आंख से भी तो देखते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि जिसकी दोनों आंखें हो, एक आंख नहीं होती वो भी तो देख लेते हैं चीजों को। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्यूलर।
ओके, सो दिस इज बाइनोकुलर डेप्थ क्यूब, ठीक है, देख रहे हो ना आप दोनों आंखों से, ठीक है। दीज आर मोनोकुलर क्यूब्स, ठीक है, लीनियर पर्सपेक्टिव, रिलेटिव साइज, लाइट एंड शेडो, एरियल पर्सपेक्टिव, रिलेटिव मोशन, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, मोनोकुलर क्यूज होते हैं। ओके, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी क्लियरली गिवन इन द बुक्स आल्सो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी लेटर, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे एग्जांपल में देखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना नोट्स में, ठीक है। देन द लास्ट, अवर लास्ट टॉपिक इज कल्चर एंड परसेप्शन, ठीक है। तो अवर कल्चर लाइक आल्सो इफेक्ट अवर परसेप्शन, हमारा जो कल्चर होता है वो भी हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करता है। ओके, सो हियर आई वांट टू फोकस अपॉन टू मेजर स्टडीज, ठीक है, बाकी सब चीजें तो आप लिख देंगे आंसर में। दो स्टडीज इसमें की गई थी, हम उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टडी वाज कंडक्टेड बाय रिचर्ड निस्बेट, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है, ये साथ में ये नाम रिचर्ड निस्बेट ने किया था। इन्होंने क्या बोला था कि देखो, अलग अलग कल्चर होते हैं, तो यूरोपियन कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, वहां का इंडिविजुअलिस्टिक है, हमारा कलेक्टिविस्टिक है। ओके, सो ईस्ट एशियन लाइक इन एशियन आर कलेक्टिविस्टिक पीपल, सो दे फोकस अपॉन डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो अलग चीजों से, अलग तरीके से चीजों को परसीव करेंगे। अमेरिकन विल परसीव थिंग्स इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग। Okay, so for example, we are collectivist society, so we focus more upon personal relationship, social responsibility, ठीक है, इन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। और ऑन द अदर एंड यूरोपियन अमेरिकन दे फोकस मोर अपॉन इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। ओके, जैसे हमें हमें कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना होता है तो हम कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता ना, वहां पे सोसाइटी अलग है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ लिमिटेशन, ठीक है, इससे हमारा कल्चर, मतलब हमारा जो कल्चर होता है उससे भी हमारे परसेप्शन पे काफी इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मतलब ये स्टडी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, कल्चर एंड परसेप्शन में रिचर्ड नेस्बिट एंड हिज कलीग, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर डू इन फैक्ट परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली, तो उनका परसेप्शन भी अलग अलग होगा। इन द सेम वे देयर इज आल्सो वन स्टडी, ओके, for this you need to understand this illusion na, I think it is given over there, Muller Ayer illusion. Okay, this is, which of the following line is longer? Okay, so you will perceive that this line is longer but it's a same line, ठीक है, दोनों सेम लाइन होती है, तो इसी को हम बोलते, क्या बोलते हैं, म्यूलर लायर इल्यूजन, LYER, ठीक है। ओके, तो ऐसे कर करके ना अलग अलग इल्यूजन्स होते हैं, इल्यूजन्स यानी कि आपको लगता है ऐसा पर वो एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। सो फॉर दिस आल्सो देयर इज वन स्टडी, ठीक है। तो जैसे एक स्टडी की गई थी, जैसे पीपल हु लिव इन कारपेंटेड एनवायरनमेंट where many of the buildings are wood framed, rectangular structured, have much experience with the architectural angles, they produce Muller Lyer illusion, ठीक है। ओके, अब देखो, जो लोग कारपेंटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको ये इल्यूजन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए कारपेंटेड एनवायरनमेंट क्या हो गया, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, बिल्डिंग से बनती है तो इस तरह से लाइन बनती है, ऐसे बीच की एक लाइन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ओके, मतलब बड़ी होती नहीं है लेकिन हमें वो लगता है कि बड़ी है, इसी तरह से घर बनते हैं ना, तो आर्किटेक्चर भी इसको यूज करते हैं, है ना। तो जो लोग इस तरीके के रेक्टेंगुलर घरों में रहेंगे, दे विल एक्सपीरियंस दिस मिरर लायर इल्यूजन मोर, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना, दे आर लिविंग इन कार्पेटेड एनवायरनमेंट वेयर मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स आर वुड फ्रेम्ड, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स आर देयर, ओके, सो दे विल एक्सपीरियंस दिस इल्यूजन मोर। ओके, बट व्हाट अबाउट द पीपल जहां पर रेक्टेंगुलर होते ही नहीं है? ओके, सो फॉर एग्जांपल देयर आर बाशी पीपल इन अफ्रीका, सो दे लिव इन राउंड ड्वेलिंग्स, उनके घर राउंड होते हैं, तो डेफिनेटली राउंड घर होते हैं, तो वहां पर मूलर आइलोजन हो गई नहीं इतना सारा, ठीक है। तो अगेन क्या हो गया, कल्चर इज अफेक्टिंग द परसेप्शन, कल्चर हमारे परसेप्शन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इन दिस वे कल्चर, दीज आर टू स्टडीज व्हिच यू कैन सी, सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स व्हिच यू हैव सीन। Other than this there are few topics more in this particular chapter which you need to explore, like in that perception there is also one experiment, visual cliff experiment, तो एक को आप तो ये देखना है विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इट इज आल्सो रिलेटेड टू डेप्थ परसेप्शन, ये बच्चों पे किया गया था, गिब्सन एंड वॉक ने किया था। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इज देयर, ठीक है, तो ईएसपी आपको देखना है ना। तो ये दो मेजर टॉपिक और रह जाएंगे इसके अलावा, ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन ऑफ सेंसेशन विल बी फिनिश्ड। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी पर्सनली, ठीक है, अदरवाइज वी कैन अरेंज वन डाउट सेशन, अगर ज्यादा डाउट निकल के आते हैं सो वी कैन डिस्कस देम। ओके, थैंक यू वेरी मच।